بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی میں سیکھیں جسم کے حصوں کے نام۔ دوستوں، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جسم کے جو بھی پارٹ پرزے ہیں ان کو عربی میں کیسے بولتے ہیں، کیا اس کے نام ہوتے ہیں۔ دوستوں، اس ویڈیو کے اندر میں ہندی اور اردو دونوں لینگویج کا لکھنے میں استعمال کیا ہوں۔ آپ اگر اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو جاننے کو ملے گا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسا ویڈیو آپ کو یوٹیوب کے اوپر نہیں ملے گا۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پرانے ہیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کر کے دوستوں میں بھی شیئر کر دینا۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جیسے آدمی کو عربی میں انسان کہتے ہیں، آدمی کو عربی میں انسان کہتے ہیں۔ حصہ کو عربی میں جز کہتے ہیں، پارٹ کو حصہ کو عربی میں جز کہتے ہیں۔ کوئی بھی پارٹ ہو، کوئی بھی چیز کا حصہ ہو، اس کو عربی میں جز کہیں گے۔ حصوں کو عربی میں اجزاء کہتے ہیں۔ حصہ یعنی ایک حصہ ہے تو اس کو جز کہیں گے، بہت سے حصے ہیں یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہیں تو ان کو اجزاء کہیں گے۔ یعنی جیسے ایک انسان کا باڈی ہے تو اس کو پورا جوڑ کر کے ایک باڈی کہا جاتا ہے، لیکن اسی میں اگر ہاتھ الگ کر دیں، پیر الگ کر دیں، سر الگ کر دیں تو یہ سب اعضاء بن جاتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں اجزاء یعنی حصے، یعنی بہت سے حصے، تو اس کو عربی میں اجزاء کہتے ہیں، یعنی یہ جمع ہے۔ سر کو عربی میں راس کہتے ہیں، سر کو عربی میں راس کہتے ہیں۔ سر کو یعنی ہیڈ کو، منڈی کو عربی میں راس کہتے ہیں۔ بال کو عربی میں شعر کہتے ہیں، بال کو عربی میں شعر کہتے ہیں، بال کو عربی میں شعر کہتے ہیں۔ آنکھ کو عربی میں عین کہتے ہیں، آنکھ کو عربی میں عین کہتے ہیں، ایک آنکھ کو عربی میں عین کہتے ہیں۔ آنکھیں یعنی دونوں آنکھ، دونوں آنکھوں کو عربی میں آیون کہتے ہیں، دونوں آنکھوں کو عربی میں آیون کہتے ہیں۔ ایک آنکھ کو عربی میں عین کہیں گے اور دو آنکھ کو عربی میں آیون کہیں گے۔ کان کو عربی میں اذن کہتے ہیں، ایک کان کو عربی میں اذن کہتے ہیں، اذن یعنی کان۔ دونوں کانوں کو عربی میں آذان کہتے ہیں، دونوں کانوں کو عربی میں آذان کہتے ہیں، آذان یعنی کانوں، دونوں کانوں کو عربی میں آذان کہتے ہیں، یہ جمع ہے۔ بھوہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو کے اندر، آنکھوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اس کو بھوہیں کہا جاتا ہے، اس کو عربی میں حواجب کہتے ہیں یا حاجب کہتے ہیں۔ حاجب کا مطلب ایک بھوہیں ہوتا ہے اور حواجب یعنی دونوں، جیسے پیچھے آپ نے ایک کان کو اذن، دو کان کو اذان، ٹھیک اسی طریقے سے بھوہیں ایک کو حاجب کہیں گے اور دونوں کو حواجب کہیں گے۔ پلک، پلک کو عربی میں رمش کہتے ہیں، پلک کو عربی میں رمش کہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آنکھوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں آنکھ کی پتلی پر، اس کو رمش کہتے ہیں، لیکن دونوں کو اگر کہنا ہوگا تو کہیں گے رموش، رموش یعنی دونوں پلکیں۔ دانت کو عربی میں اسنان کہتے ہیں، دانت کو عربی میں اسنان کہتے ہیں، اسنان یعنی دانت۔ ہونٹ کو عربی میں شفاہ کہتے ہیں، ہونٹ کو عربی میں شفاہ کہتے ہیں، شفاہ یعنی ہونٹ۔ مونچھ کو عربی میں شارب کہتے ہیں، مونچھ کو آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو میں نے اس لیے لگایا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ آپ جس چھیتر کے رہتے ہیں، آپ کے چھیتر میں جو بھی بولا جاتا ہوگا ہندی یا اردو میں، یا آپ جہاں کے بھی ہیں، بنگالی ہیں، پاکستانی ہیں، جہاں کے بھی ہیں، جو بھی بولا جاتا ہوگا اس کا میں نے فوٹو دے دیا، آپ فوٹو دیکھ کر کے پہچان سکتے ہیں کہ اس کو آپ کے دیش میں کیا بولا جاتا ہے اور عربی میں اس کو کیا بولتے ہیں۔ تو مونچھ کو عربی میں شارب کہتے ہیں۔ گلا کو عربی میں حلقوم کہتے ہیں، گلا، گلا یعنی منہ کے نیچے اور سینے سے اوپر جو ہوتا ہے یہ گردن، گلا، اس کو عربی میں حلقوم کہتے ہیں۔
जीभ को अरबी में लिसान कहते हैं। जीभ को अरबी में लिसान कहते हैं। जीभ यानी ज़ुबान को अरबी में लिसान कहते हैं। कंधा को अरबी में कत्फ कहते हैं। कंधा को अरबी में कत्फ कहते हैं। आप फोटो देख सकते हैं, जिस पर आदमी ने हाथ रखा है उसको कंधा कहते हैं। कंधा को अरबी में कत्फ कहते हैं। गर्दन को अरबी में रगबा कहते हैं। गर्दन को अरबी में रगबा या रकबा, ऐसे बड़ा काफ से लिखा हुआ है तो उसको रकबा भी बोल सकते हैं और रगबा भी बोल सकते हैं, क्योंकि अरबी लोग जो हैं वो काफ को ग के तरह से बोलते हैं। बाह को अरबी में जरा कहते हैं। बाह को अरबी में जरा कहते हैं। जरा या दरा, दरा भी कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा और ज़रा कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा। मुंह को अरबी में फम कहते हैं। मुंह को अरबी में फम कहते हैं। फोटो में देखिएगा, जहाँ पर पट्टी लगा हुआ है उसको कोहनी कहते हैं। अरबी में उसको मिरफक कहते हैं। मिरफक यानी कोहनी। घुटना, घुटना को अरबी में रुकबा कहते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं, जिसको पकड़ा हुआ है आदमी हाथ से उसको अरबी में रुकबा कहते हैं और हिंदी या उर्दू में घुटना कहते हैं। हाथ को अरबी में यद कहते हैं। हाथ को, हथेली को अरबी में यद कहते हैं। यद यानी हाथ। उंगली को अरबी में असबा कहते हैं। उंगली को अरबी में असबा कहते हैं। असबा, असबा आप देख सकते हैं अरबी में भी लिखा हुआ है। उंगली को अरबी में असबा कहते हैं। अब जो चीज़ का उंगली होगा, हाथ का उंगली होगा तो उसको यद असबा बोलेंगे, और जो पैर का उंगली होगा उसको कदम असबा कह सकते हैं या रिजिल असबा कह सकते हैं। अंगूठा को अरबी में इबहाम कहते हैं। अंगूठा को अरबी में इबहाम कहते हैं। इबहाम यानी अंगूठा। अब हाथ का है तो यद इबहाम बोलेंगे, पैर का है तो कदम इबहाम बोलेंगे। पैर को अरबी में कदम बोलते हैं। पैर को अरबी में कदम बोलते हैं। देखिए पैर क्या है, ये नीचे का जो हिस्सा है ना, इसको जिसको हाथ से पकड़ा है, एड़ी और उंगली, ये सारा मिल करके पैर कहलाता है। इसको अरबी में कदम कहते हैं। टांग को अरबी में रिजिल कहते हैं। ये जो पैर दिख रहा है ना, पंजा, पंजा के ऊपर और घुटने के नीचे का जो हड्डी होता है उसको अरबी में रिजिल कहते हैं। हिंदी या उर्दू में इसको टांग कहते हैं। जांघ को अरबी में फ़ख़ुद कहते हैं। जांघ को अरबी में फ़ख़ुद कहते हैं, यानी कमर से नीचे और घुटने से ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग जांघ कहते हैं। अरबी में उसको फ़ख़ुद कहते हैं। कमर को अरबी में वसत कहते हैं। कमर को अरबी में वसत कहते हैं। अब समझ लीजिए, वसत का मतलब बीच का हिस्सा होता है। तो पूरे बॉडी में मुंडी से लेकर के और पैर तक जाएंगे आप, तो जो सबसे बीच का हिस्सा है वो कमर होता है, तो उसको अरबी में वसत कहते हैं। पीठ को अरबी में खल्फ कहते हैं। पीठ को अरबी में खल्फ कहते हैं। पीठ को अरबी में खल्फ कहते हैं। नाभि को यानी ढोढ़ी को अरबी में सरह कहते हैं। सरह, आप उर्दू के लिखावट को भी देख सकते हैं और हिंदी को भी देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है। सरह यानी ढोढ़ी यानी या नाभि, जो भी हम लोग अपने देश में कहते हैं। छाती को सीना को अरबी में सदर कहते हैं। छाती को सीना को अरबी में सदर कहते हैं। चाहे मर्द का हो औरत का हो, दोनों को अरबी में सदर कहेंगे। कांख को अरबी में इब्त कहते हैं। कांख, कांख आप देख सकते हैं ना, जो फोटो में दिखा रही है लड़की, उसको अरबी में इब्त कहते हैं। इब्त यानी कांख। हिप को अरबी में खासरा कहते हैं। हिप को अरबी में खासरा कहते हैं। अब देखिए फ़ोटो में आपको दिख रहा होगा, जो इंसान का पिछला हिस्सा होता है उसको हिप कहते हैं। अरबी में उसको खासरा कहते हैं। अब एक और चीज़ बता दूं, पीछे का और आगे का दोनों हिस्सा जो होता है ना, दोनों को हिप ही कहा जाता है। ये अरबी में उसको खासरा कहते हैं। रीढ़, रीढ़ को अरबी में अमूद फ़िकरा कहते हैं। रीढ़, रीढ़ है ना, ये रीढ़ जो आपको देख रहे हैं फ़ोटो में लाल लाल दिख रहा है, उसको रीढ़ कहते हैं। तो रीढ़ को अरबी में अमूद फ़िकरा कहते हैं। हड्डी को अरबी में अज़्म कहते हैं। हड्डी को अरबी में अज़्म कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत सी हड्डियाँ हैं ना,
तो इसको अरबी में अज़ाम कहेंगे। अज़ाम यानी जमा हो गया। अब बॉडी में बहुत सी हड्डियाँ हैं, जैसे घुटने में है, टखने में है, गले में है, मुंडी में है, हर जगह हड्डियाँ हैं, तो उसको अज़ाम कहते हैं। एक हड्डी है, अगर आपको बताना है एक हड्डी को तो कहेंगे आज़म, लेकिन बहुत से हड्डियों के बारे में बताना है तो कहेंगे अज़ाम। खून को अरबी में दम कहते हैं। खून को अरबी में दम कहते हैं। दम यानी खून। टखना को अरबी में काहिल कहते हैं। टखना को आप देख सकते हैं, उंगली से जिधर इशारा किया गया है फ़ोटो में, उसको हम लोग टखना कहते हैं। अरबी में उसको काहिल कहते हैं। काहिल यानी टखना। एड़ी को अरबी में कआब कहते हैं। एड़ी को अरबी में कआब कहते हैं। आप देख सकते हैं हाथ से जिसको पकड़ा हुआ है, लाल कलर में दिख रहा है, उसको हम लोग एड़ी कहते हैं। अरबी में उसको कआब कहते हैं। दोस्तों, ये रहा 40 हिस्से अरबी में जिस्म के पार्ट पुर्जों का नाम। इसमें हमने 40 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। यकीन करता हूँ कि अगर आप वीडियो को पूरा देखे हैं तो आपको ये सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।